Yes, friends, so now we are going to the world of amendments, which are recently a very hot topic that MCA has came out with a notification dated 1st June 2016, and it is going to change the majority of the provisions of the corporate law, and which is going to affect both the CA curriculum and the CS curriculum. Before we move to that, which parts of the chapter will be affected where? Let me just clarify that, friends, MCA issued the notification dated 1st June 2016 constituting the tribunal and appellate tribunal, also giving certain powers to special courts and demolishing the old authority that was Company Law Board. Now, friends, I can say that the talk of constituting NCLT, I can say one of the biggest tribunal till date, was going on since 2002. Friends, not 2013, since 2002, and this tribunal came into power of late in 2016. The particular notification discusses regarding two things. One is the National Company Law Tribunal. In that particular National Company Law Tribunal, you can say that इसको शॉर्ट में पूरे कंपनी लॉ में ट्रिब्यूनल कहा जाता है, एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 90, एंड अनदर इज नेशनल कंपनी लॉ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एपेलेट ट्रिब्यूनल. इसे कंपनी लॉ के अंदर एपेलेट ट्रिब्यूनल की तरह बुलाया जाता है, एंड ऐसा कहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 के अंदर. सो पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर अब से जो अलग अलग बहुत सारी अथॉरिटीज थी वो सारी अब निकल चुकी है, एंड आप कह सकते हो पूरे कंपनी लॉ में जहां पे भी ट्रिब्यूनल वर्ड का उपयोग किया जाता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट एज ट्रिब्यूनल, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट एज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एंड वी कैन से वी नीड टू अंडरस्टैंड इट एज NCLT. एंड जब भी पूरे कंपनी लॉ के अंदर एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात की जाती है, अपील की बात की जाती है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट एज NCLAT. Friends, before we move towards further to the detailed discussion of this particular concept of tribunal and appellate tribunal and special courts and certain concepts regarding this jurisdiction mechanism, let us understand that what major change this notification of dated 1st June, or by you can say by constitution of tribunal and appellate tribunal, has been brought as far as the corporate field is concerned, as far as the corporate sector is concerned. Then I can say that I have written word line here. There will be a mixture of judicial and equitable jurisdiction while deciding the matters. मैंने ऐसा क्यों लिखा? Because आप समझो कि this will be the one of the biggest tribunal till date. आज तक की डेट तक सबसे बड़ा ट्रिब्यूनल या उसका पावर जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा as far as the NCLT is concerned. Friends, one another thing you can say, there will be a consolidation of various authorities. यानी फ्रेंड्स, अगर हम पुरानी कंपनीज एक्ट के ऊपर ध्यान दें तो 3 अलग अलग अथॉरिटीज के पास पावर थे. एक था कंपनी लॉ बोर्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखता था अपने पास. दूसरा, अगर सिक कंपनीज होती थी तो उनके बारे में डिसीजंस लेता था बाइफर.
and certain matters as far as you can say the winding up was concerned, the restructuring was concerned, then you can say the merger and amalgamation was concerned, तो उसके powers जो थे वो हाई कोर्ट के पास थे. अब फ्रेंड्स एनसीएलटी के आने से जो एक सबसे मेजर जो चेंज आया वो ये कि एमसीए ने सीएलबी को बंद कर दिया. एनसीएलटी के आने से एमसीए ने बाइफर को बंद कर दिया. एंड आप ऐसा नहीं कह सकते कि एनसीएलटी के आने से एमसीए ने हाईकोर्ट को बंद कर दिया, पर हां जो पावर्स वाइंडिंग अप रिलेटेड, मर्जर अमालगमेशन रिलेटेड, रीस्ट्रक्चरिंग रिलेटेड जो कानून ने वेस्ट किए थे हाईकोर्ट में, वो अब ट्रांसफर हो गए टू ट्रिब्यूनल. सो हाईकोर्ट बंद नहीं हो गया, पर अब हमें कंपनी लॉ के मैटर्स के लिए हाईकोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स आई कैन राइटली से दैट मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशंस जो था वो अब अवॉइड हो जाएगा. नाउ देयर विल बी lesser authorities to where we need to go for any kind of litigation is concerned. So because of this you can say now no various authorities, CLB ट्रिब्यूनल करेगा, बाइफर ट्रिब्यूनल करेगा, हाई कोर्ट के पास हमें जाना पड़ता था वो भी अब हम किसके पास जाएंगे, ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे. फ्रेंड्स एक तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ट्रिब्यूनल के अंदर कुल मिला के 11 अलग अलग बेंचेस का निर्माण किया गया. बेंचेस यानी नॉट द वन ऑन विच यू सिट एंड यू स्टडी. बेंचेस यानी अ ग्रुप ऑफ मिनिमम 2 persons. इन मैनी सिचुएशंस विल सी देयर विल बी आल्सो मोर देन 2 persons. बट बेंचेस यानी टीम जिससे ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है, ट्रिब्यूनल कोई भी मैटर को एडजुडिकेट करता है. तो फ्रेंड्स ये 11 अलग अलग बेंचेस का निर्माण किया गया है. आप नंबर देख के एक चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि इससे क्या है होगा. इससे जस्टिस आपको डोर स्टेप पे मिलेगा, यानी आपके नजदीक में यू विल गेट जस्टिस एंड दैट टू जो लीगल कानूनी कार्यवाही होगी वो भी एकदम स्पीडी हो जाएगी. एंड लास्ट जो मुझे सारे प्रोविजंस को एनालाइज करके लगा, एंड आप कहते हो सर स्पीडी प्रोसीडिंग्स का मतलब यहां पे क्या होता है, तो कई बार अगर आप कॉर्पोरेट हिस्ट्री देखो तो कई बार कंपनीज को वाइंड अप करने में 20-25 साल लग जाते थे एक कंपनी को वाइंड अप करने में. एंड अब ये बहुत फास्ट होगा. दिस विल रिड्यूस टू, we cannot exactly say, but we can say it will reduce to 2 to 3 hours. So from 20 to 25 hours it will reduce to 2 to 3 hours, 3 years. So that's how speedy proceedings can happen. And the last thing is there will be a better judgment. How there will be a better judgment? Then you can say here we have 3 things. Here we have the persons with judicial background, those who belong to the legal field, we have them. Here we also have a crux of say some matter is related to technology, the one person on the bench will be regarding law, the other person will be regarding technology. If the matter relates to the concept of, you can say, corporate compliance, then one will be a judicial member, one will be a CS. That too not a normal person but with
experience and certain qualities. If the matter is regarding accounts auditing, then there will be a legal member, there will be a chartered accountant with experience and qualities. So as here we are having a crux of not only judicial members, not only technical members, not any kind of members, but you can say here there will be a combination, here there will be a conglomeration, here there will be a merging in a bench. One judicial member, one technical member, plus they are having an experience, right? And that too they are having a high standing, integrity, confidentiality and blah blah blah, various qualities which are required for a particular person who is going to give any kind of adjudication as far as the matters which are related to the corporate affairs. So this is something which is regarding what I wanted to have a base of NCLT and NCLAT. Friends, one more thing. Let me discuss you before we move towards further with this video, that this video will be helpful to whom? Which courses? Then you can say as far as the CA curriculum is concerned, this will be helpful to final exams from May 2017 onwards. एंड ये प्रोविजंस के आने के कारण आपके कौन कौन से चैप्टर में चेंज हुआ? तो वन इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. बट सीए के अंदर वाइंडिंग अप अभी भी पुराना है, सीए के अंदर मर्जर एंड अमालगमेशन अभी भी पुराना है. सो एक छोटा सा चेंज ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में आया एंड आपके करिकुलम में दिस इज चेंज. एंड आपके करिकुलम में दो नए चैप्टर का एडिशन किया गया, दैट इज एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी एंड वन अनदर इज स्पेशल कोर्ट्स. दिस बोथ आर न्यू चैप्टर्स added. Plus, as far as the course of company secretaries is concerned, this is going to affect CS executive and CS professional. In CS executive, the subjects which will be affected will be company law. As far as CS professional is concerned, 3 different subjects will be affected by this. One will be the advanced company law and practice, one will be corporate restructuring and insolvency, and another will be due diligence. ये तीनों जगह पे चेंज आ जाएगा. एंड दैट टू ये तीनों जगह पे जो चेंज आएगा वो जून 2017 की जो एग्जाम्स है उसके बाद के लिए ये एप्लीकेबल. मीन्स जून 2017 से हर एक को ये चेंज एप्लीकेबल हो जाएगा. एंड इसके आने के कारण आपके CS स्टूडेंट्स जो है, जिनके लिए ये वीडियो वापस से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, उनके लिए कौन कौन से चैप्टर्स में चेंज आया, तो मैं कह सकता हूं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, मर्जर्स एंड अमालगमेशंस, वाइंडिंग अप, and you can say again this new chapters are for them also. So खास CA for May 2017 exam and CS kindly note down. but एक चीज का ध्यान रखना CA students कि अभी भी वाइंडिंग अप एंड मर्जर अमालगमेशन जो है still Companies Act 1956. But for CS 2013 is fully applicable. So kindly friends note down this. This will help you a lot in understanding the concepts, the crux of the particular
NCLT and NCLAT, and this will be helpful to those students who are going to move further with the concepts of whether they belong to CA or they belong to CS. But this will be really helpful to both CA and CS. And friends, further, now we are going to start with the sections which are related to NCLT and NCLAT. That is, you can say section 407 to 434. ये सारे सेक्शंस हमें यहाँ पे समझने होंगे. मैंने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सारे सेक्शंस को कुल मिला के 7 अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक किया है. द फर्स्ट विल बी द कॉन्सेप्चुअल क्रक्स, जिसको आप फिलहाल समझे कि भी ये ट्रिब्यूनल के आने से, एनसीएलटी के आने से, एनसीएलएटी के आने से क्या मेजर चेंज आया. दैट इज द कॉन्सेप्चुअल क्रक्स एंड द एप्लीकेबिलिटी. द सेकेंड वी विल फोकस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड विल फोकस ऑन हाउ actually this tribunal or appellate tribunal, as the case may be, is going to operate. अगर ट्रिब्यूनल ने जो जजमेंट दिया उससे अगर जो पार्टीज कंसर्न है वो अग्रीव्ड है, डिससेटिस्फाइड है, खफा है, तो वो फर्दर आगे अपील कर सकते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर. तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स जो ये कॉन्सेप्ट के बारे में, उनके बारे में, स्पेशल कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन कैसे वो काम करती है, जब तक वो नहीं बनती तब तक कैसे हैंडल किया जाएगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. एंड लास्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग. फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव फर्दर, लेट मी क्लेरिफाई दैट दिस चैप्टर इज नॉट एट ऑल अ टफ चैप्टर, बट एज दिस चैप्टर इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, प्लस यू कैन से no as such simplified material is available with us because it is newly introduced. The language of the Bayer Act is bit tough, not much tough. And here in this particular chapter, the conceptual portion is very less. The legal process is more, and that too legal in the sense factual portion is very much high. कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितनी डिग्री होनी चाहिए, अब ये आपको याद रखना पड़ेगा. Because many times in examination they ask this, right? पर यहाँ पे दिमाग लगाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, इतनी दिमाग की एक्सरसाइज नहीं होगी, बट हाँ आपके मेमोरी एंड आपके ब्रेन पावर को यहाँ पे टेस्ट कर लिया जाएगा. With this small base about the understanding, hereby we end up with the first part, that is, you can say, the conceptual crux. And now we need to move towards the constitution. The Navkar tribunal, third box. वैसे ही जरा सोचो, एक बार और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनो. ये देख रहे हो सिलेक्शन कमेटी, इधर इस सिलेक्शन कमेटी में ये बंदा भी सेक्रेटरी एमओएफ. सपोज सेक्रेटरी एमओएफ बीमार था, भयानक टाइप का. Yes friends, so after the conceptual crux we saw the applicability. Now we are moving towards the constitutional part of tribunal and appellate tribunal, T and AT. In this we will discuss 5 things. One will be the composition part, कि भी कौन होते हैं, कैसे ये चलता है. The second will be how they are appointed, who appoints them. The third will be for what term they are going to continue. The fourth will be the cessation of office, and the fifth will be certain concepts which are miscellaneous regarding the personnels who are involved in this particular tribunal. Now friends, when we discuss on the constitution part, in constitution part we are going to discuss 2. One is regarding tribunal, NCLT, and another is regarding NCLAT, National Communal Law Appellate Tribunal. So both of this we are going to discuss here in this particular topic. Many times if I write T dot, you need to understand I'm talking of tribunal. Whenever I write A T dot, we are discussing of appellate tribunal. Now when we discuss regarding the constitutional part of this particular tribunal and appellate tribunal, then you can say
It is an artificial person. It's an artificial body which is constituted by central government by way of notification in official Gazette of India. So it's an artificial person constituted by central government by way of notification in official Gazette of India. So friends, it is a body. Now you can understand a body, an artificial person can never take decision. So in that particular body, there will be a composition of various personnels involved. All these personnels shall be natural persons, यानी कि individuals. Now if we focus on the composition of may it be T or may it be AT, may it be tribunal or may it be appellate tribunal, I'll say there are three category of persons involved. The very first category of person is chief, yeah, you can say main person. The second category of person will be members. They both have decision making power. And the third category, which is supporters, will be various officers and employees. Moreover, this provisions or this concept, this cadre, this level of management, this level of decision making will be in tribunal also, will be in appellate tribunal also. To say, for example, if we take the concept of tribunal, then in tribunal the chief person is president, and whereas appellate tribunal is concerned, the chief person will be chairman, or you can say chairperson. Then as far as the members is concerned, they both are having the common thing, that is, as far as the member is concerned, we will be having the judicial members and the technical members. Judicial members possess legal background. As this is a legal body, this is going to provide the decision making on the legal matters. The legal conceptual crux which is required will be delivered by the judicial members. And any matter which is involved, it many times involves certain technical intricacies, such as if it's regarding accounts, then judicial member will not be knowing the nitty-gritties, the concepts, the thorough knowledge, how the accounts can be doctored. Then in that situation, a chartered accountant can play a very pivotal role. That particular technical person will be covered in technical members. Or you can say when the concept is regarding securities market, oh yeah, this person is good at law but is not good at securities law, then a company secretary would be a right person to decide the matter. So all those persons who are having knowledge and experience in technical subjects or fields will be the part of
technical members. And apart from that, there will be officers and employees at both the places. So you can say that यहाँ पे जो मेन इंसान होता है उसे प्रेसिडेंट कहा जाता है, वहाँ पे चेयरमैन कहा जाता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि चेयरमैन हो या प्रेसिडेंट हो, दे शैल बी they themselves shall be judicial members, because this being a legal body, though it is an artificial body, but it is a legal body. It's not an administrative body, it's a legal body. So here the preference will be given to judicial members. And अब से मैं प्रेसिडेंट को P की तरह एब्रीविएट करूंगा, P डॉट, चेयरमैन को C डॉट, जुडिशियल मेंबर्स को JM, टेक्निकल मेंबर्स को TM. इस तरीके से हम पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर इस कॉम्पोजिशन को समझेंगे. Now see friends, there are various definitions available in section 407. They are very simple as such. The very first definition is regarding chairperson, and they say chairperson of appellate tribunal. Then the second definition is regarding the president. President means president of tribunal. Judicial member. Judicial member means any member of tribunal or appellate tribunal and includes president and chairperson. And that's why when you saw in president and chairperson or chairman, I wrote judicial member. Technical member. Technical member means a member of tribunal or appellate tribunal. And as far as we talk of members, the members means a member, whether judicial or technical, of tribunal or appellate tribunal, and includes president or chairperson. So you can always say that the persons who are chief are also the part of what? Members themselves. So we can say that after the discussion of this, you can say both of these are members, but these are main member and these are subordinate to main members. So you can say that both of them are members of tribunal or appellate tribunal. Secondly, the provisions which are there of punishment in case of contempt of court, will they be applicable here? Then the tribunal and appellate tribunal shall have the same jurisdiction, powers and authority in respect of contempt of themselves as the High Court has, and may exercise for this purpose the powers under the provisions of Contempt of Court Act 1971. यानी अगर आप एक हाई कोर्ट की तौहीन करते हो, कंटेम्प्ट करते हो, एंड उसके अंदर हाई कोर्ट आपके सामने जो एक्शन ले सकता है जिन सिचुएशन में, वो सेम सिचुएशन यहाँ पे ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास रहेगी. प्लस फ्रेंड्स, आप और एक चीज देख सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. तो अगर ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट हो, उसके मेंबर्स हो, उसके ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज हो, या फिर ट्रिब्यूनल खुद हो, या फिर अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल हो या एपेलेट ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन हो, मेंबर हो, ऑफिसर्स हो या एम्प्लॉयज हो, या कोई भी लिक्विडेटर हो, या कोई भी इंसान हो जो ट्रिब्यूनल या एपेलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा अपॉइंटेड हो, वो जब अपने कोई भी काम कर रहे हैं और उसके अंदर उन्होंने कोई भी क्रिया की हो जो गुड फेथ में हो, पर उसके कारण किसी भी इंसान को लॉस या डैमेज गया हो, तो इन दिस सिचुएशन नो सूट, prosecution or other legal proceeding shall lie against him.
यानी उन्होंने जो कुछ भी किया है वो गुड फेथ में किया है और कानून उनके द्वारा किए गए हर एक क्रिया को बचाव रखता है। प्लस it is intended to speed up the disposal of matters to be decided by T and AT, and therefore the provisions are there that no civil court shall take cognizance of these matters, and they say no court shall have jurisdiction to entertain, to accept, to consider any suit or proceedings in respect of any matter which the tribunal or appellate tribunal is empowered to determine. No court shall have the jurisdiction to grant and stay order in respect of any action taken or proposed to be taken by T or AT. So खास करके आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे कोर्ट ना कोई मैटर का कॉग्निजेंस ले सकता है एंड कोर्ट ना कोई मैटर को इंजंक्शन प्रोवाइड कर सकता है। एंड द लास्ट, द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशंस एक्ट 1963 shall, as far as they may apply to proceedings or appeal, they also apply to proceedings or appeals which are pending before tribunal or appellate tribunal. So these are the main points which are regarding the sundry provisions of tribunal and appellate tribunal. Friends, now as far as we look at the appointment of members, now something we are going to discuss is, you can say, something which is going to be remembered by you. Now it's a memory test. And many times if you see the past papers, they ask the question on qualification of persons. So we need to mandatorily remember the same. Now as far as you can see the structure, see, don't directly try to memorize everything, you understand the structure. सबसे ऊपर हमेशा कौन होता है as far as the concept is concerned? सबसे ऊपर appellate tribunal authority and यहाँ tribunal. appellate tribunal में important कौन होगा? देन उसका चेयरपर्सन एंड उसके बाद उसके मेंबर्स, एंड ट्रिब्यूनल में प्रेसिडेंट एंड उसके मेंबर्स। तो you can say chairperson. So this is the minimum age required. Now if we talk of the experience, इसका मतलब होता है is और has been, यानी जो है या जो था। तो कौन ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट बन सकता है? कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है, एपेलेट ट्रिब्यूनल है,
we Yes, friends. So now we are going to discuss the appointment portion of the particular member. Before we move to that, how the members are appointed, who appoints them, how they seize their office. Before we move to that third portion of this particular concept, let me tell you that first we need to also learn by heart certain things. I'll explain it, obviously. But apart from that, here it's more factual and less logical. Right? So you need to learn by heart this particular thing. आप सोचोगे सर यार ऐसे क्वेश्चंस क्वालिफिकेशन के थोड़ी पूछते हैं फ्रेंड्स, सीए में कुछ भी पूछा जा सकता है, सीएस हो तो उसमें भी कुछ भी पूछा जा सकता है। एंड अगर हम पास्ट ट्रेंड देखें तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। सो हम ये डिस्कस कर रहे हैं जो आपको याद भी रखना हो, सो दैट्स व्हाई आई वुड लर्न बाय हार्ट। प्लस जब भी आप ये डायग्राम के अंदर आई और एच भी देखें, फ्रेंड्स लेट मी रिमाइंड यू दिस इज नॉट द वैलिड शॉर्ट फॉर्म, दिस इज जस्ट फॉर माय इंटरनल पर्पस। तो आई और एच भी देखो, उसका मतलब इज और हैज बीन, जो है या जो थे। अब अगर हम बात करें अब अगर हम बात करें उनके क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, तो ये क्वालिफिकेशंस जब आप देखते हो तो यहां आपको दो चीज देखने मिलेगी। एक तो इनका नॉलेज भी चेक किया जाता है, दूसरा इनका पोस्ट चेक किया जाता है, तीसरा इनका टर्म चेक किया जाता है। ये तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए we decided who will become the president of a particular tribunal or a chairperson of a appellate tribunal, or you can say either the judicial members or the technical members of tribunal or appellate tribunal as the case may be. Now if we first focus on president or if we first focus on tribunal, तो ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? तो आप समझ सकते हो जैसे ट्रिब्यूनल इज अ क्वासी लाइक सिमिलर हाई कोर्ट। तो जो इंसान हाई कोर्ट का जज है या था एंड जिसका एक्सपीरियंस, सो फ्रेंड्स हियर व्हेन वी सी द क्वालिफिकेशंस, देन द क्वालिफिकेशंस आर बेस्ड ऑन थ्री थिंग्स। वन, द नॉलेज दे possess, on the basis of that they get the experience, that is what which post they are and what the term they have enjoyed in that particular post. So if you focus on tribunal and appellate tribunal both, then you can say in tribunal the highest post is of president. In tribunal the highest post is of president, and in that, as we know that tribunal is quasi high court, it is similar to high court, so that we can understand that there the person who is eligible to become the president should be a person who is or has been a judge of a high court for a minimum tenure of 5 years. If it's so that that person is eligible to become the president of the tribunal. Yes, right. So now in this particular concept of tribunal, we can say that now we are going to discuss regarding how the persons are appointed, how the members are appointed, how much time they are going to continue. But before this, we can say that first of all we need to understand, and then later on, as this is a factual part, you need to learn by heart, and we can say that the questions are also expected from this particular portion. First of all, we need to see that yes, कौन बनेगा president या कौन बनेगा the member of may be tribunal or may be the appellate tribunal. Now friends, when you focus on this particular qualifications, this qualification is what I foresee is based on three things. One is their post, one is the term they have enjoyed in the particular post, and the third is the experience and knowledge they have. So a person who is having a conglomeration of all these things together will become eligible for being appointed as a member of a particular tribunal. जैसे कि अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल में हाईएस्ट पोजीशन किसके पास होगी, देन यू कैन से प्रेसिडेंट। तो IOHB में जब भी यूज करता हूं तो IOHB का मतलब होता है इज और हैज बीन, यानी जो है या जो था। Now see, as we all know that tribunal is a quasi judicial court, high court,
तो ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? जो था या है जज। किस चीज का जज? देन यू कैन से हाई कोर्ट का जज। एंड उसके पास एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए? 5 साल होना चाहिए। सो वो जज होना चाहिए एंड उसके पास 5 साल की एक्सपीरियंस हो, तो वो क्या बन सकता है? प्रेसिडेंट बन सकता है ट्रिब्यूनल का। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके जो जुडिशियल मेंबर्स हो गए, टेक्निकल मेंबर्स हो गए। नाउ एज यू अंडरस्टैंड जुडिशियल मेंबर्स, दे आर द पर्सन्स हु शैल हैव द लीगल वैल्यू एंड टेक्निकल मेंबर्स विल बी पर्सन्स हु शैल हैव द सब्जेक्ट वाइज नॉलेज। तो यहाँ पे 3 प्रकार के लोग हैं। सबसे ऊपर की जज जो कोर्ट होती है वो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे और किसी ने एडवोकेसी। तो हाई कोर्ट का जो जज हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज हो और उसके पास 5 साल के एक्सपीरियंस हो, एंड एडवोकेट अगर हो तो उसने 10 साल की भी अगर एडवोकेसी की हो, तो वो इंसान जुडिशियल मेंबर बन सकता है ट्रिब्यूनल का। एंड अगर हम टेक्निकल मेंबर की बात करें तो टेक्निकल मेंबर के अंदर वी शैल अंडरस्टैंड दैट द पर्सन शुड बी हैविंग अ थरो नॉलेज ऑफ द मैटर्स व्हिच आर कमिंग टू। सो कौन सा इंसान हो सकता है? देन यू कैन से दिस जो मेंबर हो इंडियन लीगल सर्विस का, या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जो कंपनी सेक्रेटरी हो, जो कॉस्ट अकाउंटेंट हो, पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसके पास मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर अगर कोई इंसान के पास ये डिग्रियां नहीं है पर उस इंसान के पास प्रूवन एबिलिटी, ही इज नोन, हिज रेपुटेशन इज देयर इन हैंडलिंग द मैटर्स रिगार्डिंग मर्जर अमालगमेशंस, वाइंडिंग अप, tribunal matters, industrial disputes, corporate restructuring. In short, that person is a well-equipped, equipment person as far as the corporate affairs are concerned. तो अगर उसके पास भी 15 साल का एक्सपीरियंस हो तो हम उसको भी यहाँ पे टेक्निकल मेंबर के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। या फिर किसी इंसान ने एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम किया हो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में या एपीलेट में, और उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, he can also become a member of the tribunal. And that too a technical member. And friends, मैं वापस से आपको याद करवा दूं कि जुडिशियल मेंबर्स में से ही कोई क्या बन सकता है? प्रेसिडेंट बन सकता है। So these are the education qualifications, or you can say qualifications required to be admitted as a member of a tribunal. Then friends, when we move to the appellate tribunal. In appellate tribunal, the main person, the person who is at the helm of the affairs, is the chairperson. Now, who can be this particular chairperson? तो यहाँ पे हाई कोर्ट का जज था, तो यहाँ पे हमें हाई कोर्ट्स के सारे जजों का जज, यानी सारे जज का हेड, यानी चीफ जस्टिस चाहिए हाई कोर्ट का, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए जाए, उससे एक स्टेप ऊपर जाए, तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट का जज चाहिए। As far as appellate tribunal is concerned, हमें क्या चाहिए? जो हाई कोर्ट का जज हो, जुडिशियल मेंबर्स में, या फिर जुडिशियल मेंबर में और कौन हो सकता है? जिसने मिनिमम 5 साल का जुडिशियल मेंबर का ट्रिब्यूनल एक्सपीरियंस ले लिया, वो इंसान यहाँ पे appellate tribunal में जुडिशियल मेंबर बन सकता है। एंड तीसरी चीज टेक्निकल मेंबर्स, तो वो यही बात है, those persons who have proven ability, experience, knowledge in the field of industrial disputes, corporate affairs, mergers, winding ups, all those corporate restructurings। पर हाँ, नोट करने लायक चीज ये है कि यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, जबकि यहाँ पे हमें मिनिमम 25 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ऐसे इंसान टेक्निकल मेंबर बन सकते हैं किसके? appellate tribunal के। Now, if we focus on the minimum age which is required, तो एक चीज आप देख सकते हो कि हर एक जगह पे एक इंसान जब तक 50 साल का नहीं हो सकता, नहीं हो जाता, तब तक वो ना तो ट्रिब्यूनल में ना तो appellate ट्रिब्यूनल में मेंबर बन सकता है, या कोई भी प्रकार का मेंबर बन सकता है। हाँ, बट ये इंसान जब भी अपॉइंट किया जाएगा, इसकी अपॉइंटमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, वो कितने साल के लिए की जाएगी? फॉर 5 years, every 5 years। फिर प्रश्न ये होगा कि सर, जिनको हमने अपॉइंट किया, क्या वो इंसान रीअपॉइंट हो सकता है? देन द आंसर इज यस। कैन बी reappointed for another term of
5 years. So another term of 5 years के लिए वो वापस से क्या हो सकता है, रीअपॉइंट हो सकता है। एंड कब तक वो रीअपॉइंट हो सकता है, तो ध्यान रखना है यहाँ मैक्सिमम एज की भी एक लिमिट दी है। मिनिमम एज की तो लिमिट है ही, पर यहाँ पे मैक्सिमम एज की भी एक लिमिट है। एंड वो लिमिट क्या है, तो ये सारी कैडर में से सबसे छोटा इंसान कौन, प्रायोरिटी वाइज देखें तो ये लोग, उससे थोड़ा ऊपर कौन, प्रेसिडेंट, उससे थोड़े ऊपर कौन, ये लोग, एंड सबसे ऊपर कौन आएगा, चेयरपर्सन। सो लाइकवाइज इनकी जो मैक्सिमम जो टर्म है वो भी उसी के मुताबिक डिसाइडेड होती है। जैसे ये अगर आप देखो तो इनकी जो मैक्सिमम टर्म है वो 65 ईयर्स, फिर उनके प्रेसिडेंट की 67 ईयर्स, फिर उनके प्रेसिडेंट को और एपेलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को सेम फुटिंग पे ला दें। सो इनके भी 67 ईयर्स, एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल का जो चेयरपर्सन होता है वो 70 ईयर्स तक सर्व कर सकता है। जैसे प्रेम ने बताया, ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारा मटेरियल आपके पास नोट्स के तौर पे रहेगा, राइट, पर इसके साथ साथ ये डायग्रामेटिक टेबुलर फॉर्म जो शॉर्ट में लिखा गया है, ये आपको याद रखने में काफी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, this is again I'm telling this lecture is very important for those CA finalists appearing from May 17 onwards. This is also equally important for those students who are into CS executive and CS professional. Kindly have a Yes, friends. So now, as far as the members' appointment is concerned, you can see the last part regarding this concept. Then, first is regarding who selects them. Second is how they are appointed. Third is acting portion. We'll see. First, if you focus on the selection part, then ट्रिब्यूनल का जो प्रेसिडेंट होता है या एपेलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन या एपेलेट ट्रिब्यूनल के जुडिशियल, उनको कौन अपॉइंट करता है, देन यू कैन से उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद कंसल्ट करके अपॉइंट करवाता है। बट एज फार एज दूसरे लोग जो बचे, यानी ट्रिब्यूनल के बारे में बात करें तो उसका जुडिशियल मेंबर बचा, उसके टेक्निकल मेंबर बचे, एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात करो तो उसके कौन बचे, टेक्निकल मेंबर्स। उनके लिए क्या किया जाता है, एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, एंड वो सिलेक्शन कमेटी में हु इज द चेयरपर्सन, तो सिलेक्शन कमेटी में ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो खुद चेयरपर्सन होंगे या वो अपना नॉमिनी भेजेंगे, एंड उनके साथ साथ और मेंबर्स चार होंगे। एक होगा सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी। सो इससे क्या होगा, जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें आप देख सकते हो कि भाई लीगल साइड बहुत अच्छा आ जाएगा, दिस इज कॉर्पोरेट साइड बहुत अच्छा आ जाएगा, लॉ के लोग आगे, जस्टिस के लोग एंड फाइनेंस के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। सो ऑल दिस मैटर्स आर जनरली इन्वॉल्व इन द कॉर्पोरेट फील्ड। तो ये सारे लोगों के जो बेस्ट लोग हैं उनके द्वारा एक कमेटी बनेगी, और वो कमेटी रिकमेंडेशन करेगी, अल्टीमेटली ये सारे लोगों को अपॉइंट तो कौन करने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लस एक चीज का आपको ध्यान ये रखना है कि एनी डिफेक्ट और वैकेंसी इन सिलेक्शन कमेटी नॉट टू इनवैलिडेट एनी अपॉइंटमेंट डन इन ट्रिब्यूनल और एपेलेट, यानी उनके कोई डिफेक्ट के कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई असर होगा, एंड ऑल दिस आर अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सबको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लस उनके सैलरी, अलाउंसेस, कंडीशंस ऑफ सर्विस, ये सब क्या रहेंगे, डिसाइडेड बाय सीजी।
क्या ऐसा था कि इन सबके लिए वापस से अप्लाइड ट्रिब्यूनल के लिए वापस से सबकी अपॉइंटमेंट की गई थी? देन आंसर इज नो. एज वी नो दैट पुराना जो सीएलबी था उसको उन्होंने क्या किया? क्लोज किया. एंड उन सीएलबी में से जितने भी उनके जो लोग थे, उनके जो लोग हमने आगे बताया एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो सकते उनमें जो फिट हो रहे थे, सूट हो रहे थे, उनको उन्होंने यहाँ पे अपॉइंट किया. एंड ध्यान ये रखना है कि उनको जब अपॉइंट किया तो उनके जो सैलरी अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस जो है वो सेम या प्रिफरेबल होने चाहिए, नॉट प्रेजुडिशियल टू ओल्ड पोजीशन. यानी उनकी सैलरी वो सब उनकी पोजीशन पहले थी उतनी या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो उससे प्रेजुडिशियल तो होनी चाहिए. सो यहाँ पे सारे नए अपॉइंटमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पुराने लोग कंटिन्यू करेंगे. हाँ, उनमें से जो लोग यहाँ फिट नहीं हो रहे, they need to vacate their office. Remember, for that, no compensation for loss of office will be given. कोई compensation दिया जाएगा. And last, इनके powers and functions क्या होंगे? तो अगर हम देखें कि appellate tribunal जो है, उसका power and function क्या होगा? Discharge functions under Act and other. यानी इस एक्ट के अंदर जैसे मर्जर अमालगमेशन के बारे में सोच कि स्कीम को अप्रूव करना, वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स देना, राइट. दूसरे जो जो फंक्शन इस और दूसरे एक्ट में उसका ध्यान रखना. एंड ट्रिब्यूनल का काम ये होगा. एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल का काम क्या होगा? टू हियर अपील्स ऑफ ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल. तो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ जो अपील आती है वो सुनने का काम किसका होगा? एपेलेट ट्रिब्यूनल. एंड माय लास्ट पॉइंट इज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल या चेयरपर्सन ऑफ एपेलेट. इसका मतलब क्या है? जैसे कई बार आपने देखा हो कि आपके घर में वैसे तो आपके पेरेंट्स में वो जब होते हैं तब उनका ही चलता है, पर इन केस अगर आपके पेरेंट्स कहीं बाहर हैं तो फिर किसका चलेगा? आपका. आपसे अगर कोई बड़ा भाई हो तो बड़े भाई का, राइट. बड़ा भाई अभी ना हो तो आपका. सो यू गो बाय सीनियर मोस्ट प्रेसिडेंस. सिमिलरली ये एक्टिव प्रेसिडेंट की बात हो आती है जब प्रेसिडेंट या चेयरमैन पोजीशन वैकेट कर. क्यों वैकेट कर दे? बिकॉज ऑफ देयर डेथ, बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन, एनी अदर रीजन. या फिर प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो है वो पोजीशन के अंदर एब्सेंट है ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू सिकनेस और एनी अदर रीजन. देन इन दिस सिचुएशन सीनियर मोस्ट मेंबर to act as president or chairman till the new president or chairman is appointed or till the president or chairman resumes their particular office. पर ध्यान रखना है यहाँ पे जब उन्होंने कहा है मेंबर तो ये ऑब्वियसली सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर, बिकॉज अब वैसे भी जानते हैं कि टेक्निकल मेंबर जो होते हैं वो कभी चेयरमैन या प्रेसिडेंट बन सकते हैं. तो जो जुडिशियल मेंबर होगा वो इंसान उसमें जो सीनियर मोस्ट होगा, राइट. नॉट एज वाइज बट आई थिंक सो, कुछ क्लैरिफाई नहीं किया, बट नॉट देयर एज बट एज फार एज देयर एज व्हिच दे हैव सर्व इन द पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल. यानी जिसने ज्यादा टाइम ट्रिब्यूनल या एपेलेट ट्रिब्यूनल में जिस जुडिशियल मेंबर ने बिताया वो इनकी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा. सो दिस इज फ्रेंड्स समथिंग रिगार्डिंग द मेंबर्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल. यू काइंडली हैव अ नोट ऑफ द सेम.
दैट विल अगेन गो। तो रिटायरमेंट की अगर बात करें तो ट्रिब्यूनल के चेयर प्रेसिडेंट या ट्रिब्यूनल का मेंबर, एपेलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन या एपेलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर, इनकी जो एज है 65, 67, 67 एंड 7। जैसे वो लोग ये इयर्स को अचीव करेंगे, they need to retire, and when they retire, they cease to hold office and new person will be appointed. But apart from that, the another R is resignation. अगर कोई भी इंसान रिजाइन करना चाहता है, this power is with president, chairman and all the members, then they can always resign. पर उनको क्या करना होगा? They need to write a notice in writing to central government, and as soon as they give the notice, on which date resignation will be effective, तो हमें 3 अलग अलग तारीख होंगी। Date, which is 3 months from date of notice of resignation, यानी जिस दिन उस इंसान ने रेजिग्नेशन की नोटिस दी वहां से 3 महीने की तारीख दी। दूसरी तारीख सक्सेसर इज अपॉइंटेड, एंड तीसरा टर्म एक्सपायर्स। तीनों में से whichever is अब देखो 2 कॉन्सेप्ट दिमाग में आ सकते हैं, अर्लियर या लेटर। तो कैसे याद रखेंगे? हमें इफेक्टिवनेस ढूंढनी है, तो इफेक्टिव का ई, तो अर्लियर का भी ई, दैट्स व्हाई लेटर विल बी। सो ए और बी और सी व्हिचएवर इज अर्लियर। एक तो 3 महीना, दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर एंड तीसरा एक्सपायरी ऑफ टर्म। तीनों में से जो पहले हो जाए उस दिन को ये रेजिग्नेशन क्या हो जाएगा? प्लस द थर्ड आर्ट विच इज इंपॉर्टेंट इज रिमूवल ऑफ पर्टिकुलर। वो यहाँ लीगल रीजन से निकल जाता है, अपनी इच्छा से निकलता है, और यहाँ पे उसे निकाला जाता है। अब एक चीज का ध्यान रखना, निकालने अथॉरिटी का तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट, बट आफ्टर सलाह मशवरा कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिकॉज हमने उनकी ही कंसल्टेशन से इनको अपॉइंट किया था, तो उनकी कंसल्टेशन के साथ ही हम उनको रिमूव कर सकते हैं। ग्राउंड कौन सा हो सकता है? वो इंसान इंसॉल्वेंट है, that person is convicted for moral turpitude, यानी immoral things, that person is incapable, उसने ऐसी पोजीशन एक्सेप्ट कर ली कोई जगह पे जिससे वो अब अच्छी तरीके से अपनी यहाँ की पोजीशन एंजॉय नहीं कर सकता है, उसने अपनी पोजीशन का एब्यूज किया। ये सारे ग्राउंड्स में गवर्नमेंट उन्हें निकाल सकता है, पर ध्यान ये रखना है कि जब उन्हें ये ग्राउंड्स पे निकाला जाता है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शेल में, प्लस जब मैटर ये दो, तो फिर इन दिस सिचुएशन खास करके सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो इंक्वायरी करेंगे, एंड सुप्रीम कोर्ट के जज इंक्वायरी करने के बाद अगर कहते हैं तो ही हम उन्हें रिमूव करेंगे, अदरवाइज हम उन्हें रिमूव नहीं कर सकते। लेट्स फ्रेंड्स फोकस मोर ऑन द इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट जज। व्हाट इट सेज फ्रेंड्स, the president, chairperson or any member shall not be removed from office for the grounds referred as physically or mentally incapable or that the person is abusing his position unless following conditions are fulfilled. Central government will make a reference to the judge of the Supreme Court जिसको नॉमिनेट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा। वो सुप्रीम कोर्ट का जज इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी जब चल रही तब सामने वाले इंसान को जिसको हम निकालना चाहते हैं उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है
वो रिपोर्ट करेगा कि भाई उस इंसान को रिमूव किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। एंड सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट उस इंसान को रिमूव करेगा, यानी कोर्ट कहे तो करेगा, सुप्रीम कोर्ट ना कहे तो नहीं करेगा। मोरओवर, द सेंट्रल गवर्नमेंट मीट विद द कंसल्टेशन एंड परमिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया suspend from office the person who is required to be removed until the government has passed orders on receipt of report from Supreme Court judge। यानी कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई रेफरेंस दिया तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आता तब तक सस्पेंड करने का पावर गवर्नमेंट के पास है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल आफ्टर सलाह मशवरा विद सुप्रीम कोर्ट मे मेक रूल्स फॉर द इंक्वायरी कि भाई किस तरीके से उस इंसान के ऊपर पूरी इंक्वायरी की जाए। तो आप समझ सकते हो कि फ्रेंड्स ये तीन अलग अलग सिचुएशन है, 3R। वन इज रेजिग्नेशन, अनदर इज रिटायरमेंट, द थर्ड इज द रिमूवल, इन विच द पर्सन हु इज ईदर द प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, हु इज ईदर द चेयरपर्सन ऑफ appellate tribunal, or whether the person is judicial member or technical member of tribunal or appellate tribunal may cease to hold the office. So friends, kindly note down of all the 3 slides one by one for your reference. This slide, and that slide. So friends, now whenever this letter is referred to tribunal, right, how the tribunal gives its judgment? So it is by constituting the bench. Bench means, hereby they say team. Bench means what? Team. Now, in a team, generally this कितनी बैचेस बनानी चाहिए, तो वो ट्रिब्यूनल चाहता है, ट्रिब्यूनल इज प्रेसिडेंट प्लस जो प्रिंसिपल बेंच है, जो मेन बेंच है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इट इज एट न्यू दिल्ली, इट इज एट न्यू दिल्ली एंड इट इज प्रिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल। यानी इधर मेन कौन होगा, प्रेसिडेंट। एंड एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, फिलहाल 11 अलग अलग बेंचेस पूरे इंडिया के अंदर बनी है। नाउ इन नॉर्मल सिचुएशंस जो जनरल बेंच होती है वो 2 मेंबर्स की होती है, वन इज जुडिशियल मेंबर, वन अनदर इज टेक्निकल, एंड ये दोनों मेंबर्स डिसीजन लेते हैं। कई सिचुएशन में जब मैटर सिंपल सा हो तो एक सिंगल मेंबर बेंच भी होती है एंड दैट सिंगल मेंबर बेंच विल टेक द डिसीजन, बट द डिसीजन टेकन बाय सिंगल मेंबर बेंच may be referred by president of tribunal to 2-member bench। यानी कि सिंगल मेंबर बेंच से जो जजमेंट आया उससे प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड ना हो, ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड ना हो, या वो पार्टी सेटिस्फाइड ना हो, तो वो लोग उसे 2 मेंबर्स बेंच पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो जनरली देयर इज डबल मेंबर बेंच, पर कई बार ऐसा नहीं हो सकता है कि देयर कैन बी अ सिंगल मेंबर बेंच। प्लस फ्रेंड्स, यू शैल ऑलवेज नोट डाउन दैट फॉर सर्टेन स्पेशल सिचुएशंस such as that in the situation or the matter is regarding rehabilitation of a sick term, or it's regarding restructuring of a sick company, or regarding restructuring of any company, or regarding revival, then in this special circumstances there will be a specific 3 members bench, and not a single member, not a double member, but a 3 members bench. Now you will be wondering that सर जब ये 3 मेंबर की बेंच होगी तो उसमें जुडिशियल मेंबर कितने, टेक्निकल मेंबर कितने, तो मेजॉरिटी मुझे जुडिशियल मेंबर चाहिए और एक टेक्निकल। सो दिस इज हाउ नॉर्मली 2 मेंबर्स बेंच इज देयर, स्पेशल सिचुएशंस 3 मेंबर्स बेंच, एंड देयर कैन आल्सो बी सम सनडे सिचुएशंस सिंगल मेंबर बेंच। अब एक्चुअल डिसीजन कैसे लिया जाता है, तो डिसीजन इज टेकन बाय मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी में अगर आप देखो तो जब मेंबर्स जो है वो ऑड इन नंबर हो गए, जैसे कि 1 और 3
उसमें तो मेजोरिटी होती है, बट वो जब इवन इन नंबर 2, now one says yes, one says no, so there is a conflict. So in that situation, what is to be done? Refer to president. जब दो मेंबर की बेंच में प्रॉब्लम हो रहा हो तो रिफर टू प्रेसिडेंट. P2 अपॉइंट वन मेंबर. एंड जब दो मेंबर की बेंच थी ओरिजिनल और एक नया मेंबर अपॉइंट किया गया, तीन लोग वापस से चर्चा विचारणा करेंगे. एंड नाउ एज इट इज इक्वल टू ऑर्डर, नाउ द डिसीजंस विल बी टेकन बाय majority. So this is how the decisions are taken whenever any matter is referred to tribunal. Now so we are talking towards the last point of tribunal, that is tribunal passing order. Now see, whenever tribunal passes order, as we know, it passes with the help of bench, plus they are available with various powers. जो powers के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा जब हम इसके बाद appellate tribunal की बात करेंगे. अब जब ऑर्डर की बात करते हैं तो मैं ऑर्डर को दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ. वन इज द ओरिजिनल ऑर्डर. ओरिजिनल ऑर्डर जो पास किया जाएगा पहली बार, तो उसमें हमेशा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शेयर, बिकॉज वी नो दैट दिस इज नथिंग एल्स बट इट इज रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसे हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद जितना हो पाए उतना एक्सपीडिशियसली का मतलब होता है स्पीड, बट जो सारी सावधानियां रखनी है वो तो आपको रखनी है, स्पीड प्लस कॉशन. सो जितना हो पाए उतना फास्ट, बट सारी प्रिकॉशन लेते हुए ऑर्डर पास करना होगा. पर हाँ, 3 महीने की लिमिट दी गई कि जिस दिन मैटर ट्रिब्यूनल के पास आए उसके 3 महीने में उसका आंसर आ जाए. पर सोचो इन केस नहीं आ पाए, एक्सटेंशन इन केस ऑफ डिले, तो फिर व्हाट इज टू बी डन? रिकॉर्ड रीजंस फॉर डिले. तो फिर डिले के रीजंस जो है वो रिकॉर्ड करने होंगे. एंड उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल में ग्रांट एक्सटेंशन अप टू 90 days. सो आप कह सकते ओरिजिनल में 3 मंथ्स की थी और एक्सटेंशन और इफेक्टिवली 3 महीने का यानी कि 90 days का. This is as far as the matter is concerned as far as tribunal order. And in case amended order क्या होगा? तो in case अगर कोई मिस्टेक हो जाए जिसे रेक्टिफाई करने की जरूरत है, ये मिस्टेक आइडेंटिफाइड बाय ट्रिब्यूनल सुओ मोटो या इंडिकेटेड बाय पार्टीज, तो फिर उसे रेक्टिफाई करता हुआ ऑर्डर पास किया जाएगा. ये कब पास किया जा सकता है? विद इन 2 months ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर, सॉरी विद इन 2 years ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर, अनलेस नो अपील लॉन्च्ड टू 8. यानी कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ अगर कोई अपील लॉन्च कर दी गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता. पर अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ अपील लॉन्च नहीं हुई है, प्लस अभी तक ओरिजिनल ऑर्डर को पास किए 2 साल एक्सपायर नहीं हुए, और अगर उसके दरमियान ऐसी मिस्टेक पाई जाए तो ट्रिब्यूनल हैज अ पावर टू अमेंड द ओरिजिनल ऑर्डर पास्ड. एंड एक चीज का ध्यान रखना, ऑर्डर ओरिजिनल हो या अमेंडेड हो, copy of order always serve to parties. जो भी पार्टी है मैटर के अंदर इन्वॉल्व, उनको हमेशा ये ऑर्डर की कॉपी दी जानी चाहिए. सो ट्रिब्यूनल ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर 3 महीने, एक्सटेंशन ऑफ 90 days, अमेंडमेंट हो सकता है मिस्टेक के दरमियान, कब तक? अप टू 2 years. So kindly also note down this. Now friends, let us see the concept of the appeal to appellate tribunal. The concept of appeal to appellate tribunal
will go. How? So whenever the tribunal passes an order, tribunal serves the copy of order. Tribunal order copy on both the parties to appeal. Both the parties to make. Now, whenever the order is passed, we need to ask, is parties aggrieved by tribunal order? यानी क्या पार्टीज ट्रिब्यूनल ऑर्डर से अग्रीव्ड है? ना. So that means parties accept ट्रिब्यूनल ऑर्डर. बट इन केस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के आ जाने के बाद पार्टीज अग्रीड हो, तो उसका मतलब पार्टीज इसका मतलब ये हुआ पार्टीज प्रेफर एन अपील टू एपेलेट. यानी वो क्या करना चाहते हैं? एपेलेट ट्रिब्यूनल को अपील. अब ये अपील कैसे की जाती है? तो parties to tribunal will lodge an appeal along with prescribed fees, along with prescribed documents, and within 45 days of ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आया था उसके 45 डेज में वो लोग एपेलेट ट्रिब्यूनल को अपील करते हैं. या फिर कई बार क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ फर्दर 45, या फिर 45 डेज का और क्या मिल सकता है? एक्सटेंशन. दिस इज हाउ द अपील इज लॉन्च्ड टू एपेलेट ट्रिब्यूनल. नाउ व्हाट एपेलेट ट्रिब्यूनल विल डू? So, notice of hearing. So पहले हर एक पार्टी को हियरिंग की नोटिस देगा, प्लस देन कंडक्ट हियरिंग. फिर वो हियरिंग करेगा, जिसके बहुत सारे अलग अलग पावर्स हैं जो हमें देखने हैं. हियरिंग करने के बाद व्हाट द पर्सन विल डू? ट्रिब्यूनल विल डू. So, appellate tribunal order to parties to appeal. And tribunal क्या कर सकता है? What tribunal can do? ये जो order है वो may confirm tribunal order, यानी appellate tribunal के order को confirm कर सकता है कि बराबर है, या फिर उसे बराबर ना लगे तो वो उस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकता है. एंड अगर उसे बराबर ना लगे तो वैसा भी कर सकता है, वो ट्रिब्यूनल को कह सकता है कि तुमने जो ऑर्डर पास किया उसे पूरा सही असाइन करते हैं, उसे पूरा कैंसिल करते हैं. एंड वो ट्रिब्यूनल को बोल सकते हैं कि वापस से कानूनी कार्यवाही. तो ये सारे प्रकार के पावर्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास होते हैं जब ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ सही समय पे सही डॉक्यूमेंट्स के साथ सही फीस भर के सही तरीके से एप्लीकेशन किया जाए. एंड क्या पावर होते हैं उसके पास हियरिंग करते हुए? तो कानून ये कहता है
powers of tribunal or appellate tribunal are quasi civil court। यानी कि एक मैटर को हैंडल करने के लिए सिविल कोर्ट के पास जितने पावर्स होते हैं वो सारे पावर्स एक ट्रिब्यूनल या appellate ट्रिब्यूनल के पास होते हैं। एंड इतना ही नहीं, proceedings by tribunal या appellate tribunal is deemed judicial proceedings। यानी judicial proceedings ऐसा मान लिया। Let us see कौन कौन से पावर होते हैं। To summon attendance of any person, यानी वो किसी भी इंसान को बुला सकता है। To summon attendance of witness, वो चश्मदीद गवाह को पेश होने के लिए भी कह सकते हैं। To demand documents, records, information। To demand evidence on affidavit, यानी वो एफिडेविट के तौर पर भी एविडेंस मांग सकते हैं। उनके पास पावर है टू एग्जामिन अ पर्सन ऑन ओथ, यानी वो मुख वाली किताब के ऊपर हाथ रखवा के कसम खिलवा के एक इंसान का एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। अगर हियरिंग रखा है, हियरिंग के नोटिस सर्व किए, पर सामने वाला पार्टी दूसरी जो पार्टी होती है वो नहीं आती, तो उनके पास पावर होता है टू पास एक्स पार्टी ऑर्डर। वो एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। चलो ट्रिब्यूनल ने एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया, उसके बाद जो पार्टी एब्सेंट रही थी वो थोड़े दिनों के बाद आई और उसने रीजनेबल ग्राउंड टेक बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई वाज एब्सेंट, काइंडली एक्सेप्ट माय एब्सेंस। एंड अब ट्रिब्यूनल क्या करना चाहता है, उसने जो एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया था उसके ऊपर वो कानूनी कार्यवाही शुरू करना चाहता है। क्या वो कर सकता है? एब्सोल्युटली। पर उसके पहले उसे क्या करना होगा, पहले जो एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया उसे सेट असाइड करना होगा, क्योंकि ऐसा पावर है उसके पास। तो यस, टू सेट असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर पास्ड। अगर वो एक्स पार्टी ऑर्डर को पास किया था उसे सेट असाइड कर रहा है, वापस से अपनी कानूनी कार्यवाही कर रहा है, तो शायद से उसका डिसीजन बदल जाए। तो क्या उसके पास ऐसा कोई पावर है? हाँ, टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन। उनके पास डिसीजन रिव्यू करने का पावर है। प्लस अगर किसी ने अप्लाई किया और वो एप्लीकेशन डिफॉल्ट है, तो टू डिसमिस अपील इन केस ऑफ डिफॉल्ट। फिर जब वो डिसमिस अपील करेगा तो रीजन बताएगा कि क्यों डिसमिस, फिर सामने वाली पार्टी उस रीजन जिसके कारण ऑर्डर डिसमिस अपील डिसमिस हुई उसको रेक्टिफाई करे और वापस से अप्लाई करे, तो क्या होगा? तो टू सेट असाइड dismissal order earlier passed, and इसके अलावा any other matter, यानी जिसे नॉर्मली कहते हैं, इसके अलावा से और कोई पावर की जरूरत हो तो वो हमेशा ले सकते हैं। सो कौन कौन से पावर्स अवेलेबल? किसी भी इंसान को बुलाना, कोई भी इंसान को इंक्लूडिंग चश्मदीद गवाह, डॉक्यूमेंट्स डिमांड करना, एविडेंस डिमांड करना, पर्सन को एग्जामिन करना ओथ के ऊपर, एक्स पार्टी ऑर्डर पास करना, ऑर्डर को सेट असाइड करना, डिसीजन को रिव्यू करना, डिसमिसल ऑर्डर देना एंड एक्सेट्रा। ये सारे पावर्स एक एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास होता है। एंड ध्यान क्या रखना है, एपेलेट ट्रिब्यूनल जब भी ऑर्डर पास करता है उसकी भी टाइम लिमिट है। सेम उसे जितना हो पाए उतना
एक्सपीडिशियसली ऑर्डर पास करना चाहिए, उसे एंडेवर करना चाहिए कि वो 3 महीने में ऑर्डर पास करे। अगर नहीं कर पाया तो extension by chairman of appellate tribunal of 90 days in case the reasons are given in writing that why the appellate tribunal was unable to give the judgment within 3 months. Again, the copy of order of appellate tribunal will also be given to parties to tribunal, and once the order is passed, and still if the parties are agreed by appellate tribunal order, then in that situation again the appeal can go to Supreme Court. पर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ट्रिब्यूनल का appellate ट्रिब्यूनल का ऑर्डर अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स के ऊपर हो तो appellate ट्रिब्यूनल ऑर्डर इज फुल एंड फाइनल, बट अगर appellate ट्रिब्यूनल का ऑर्डर क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर है और उससे पार्टीज अग्रीड है, तो फिर इन दैट सिचुएशन दे कैन प्रेफर एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट विदिन हाउ मेनी डेज, तो विदिन 60 डेज ऑफ appellate ट्रिब्यूनल ऑर्डर, एंड अगर डिले हुआ तो सुप्रीम कोर्ट और 60 डेज का एक्सटेंशन दे सकता है इन केस ऑफ सफिशिएंट रीजंस आर शोन. This is how the first appeal goes to appellate tribunal within 45 days of tribunal order. The second appeal goes to Supreme Court within 60 days from the date of appellate tribunal order. And this is how the concept works in case of NCLT and NCL18. Friends, further you shall note down that जो भी ऑर्डर पास किया जाता है ट्रिब्यूनल के द्वारा या appellate ट्रिब्यूनल के द्वारा, उसे कैसे एनफोर्स किया जाए, उसे कैसे सर्व किया जाए. तो ये कहा जाता है कि एनी ऑर्डर मेड बाय ट्रिब्यूनल और appellate ट्रिब्यूनल may be enforced by that person as if it's a order, as if it's a decree made by court, and it should be lawful for that tribunal to send for execution of its orders within the local limits of whose jurisdiction the registered office of the company is situated, or you can say the person voluntarily resides or carries on its business or personally works for gain. प्लस ये सब करने के लिए, यानी जब ये कानूनी कार्यवाही चल रही है, तब इन केस अगर कोई भी प्रकार का कंटेम्प्ट ऑफ ट्रिब्यूनल या appellate ट्रिब्यूनल हुआ, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के लिए जो गुना जो पेनल्टी अवेलेबल होती है वही पेनल्टी यहाँ पे भी लग जाती है. प्लस ये पूरी कार्यवाही के दरमियान कभी भी ट्रिब्यूनल को ऐसा लगे कि उसे प्रॉपर्टी, बुक्स या डॉक्यूमेंट्स जो है सिक कंपनी के या वाइंडिंग अप के दरमियान उनको कस्टडी में लेना, तो वो भी वो कर सकते हैं. बट रिमेंबर, इन दैट सिचुएशन द रिक्वेस्ट इज मेड टू चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, and they will provide all kind of assistance which the tribunal or appellate tribunal demands. प्लस एक चीज का खास ध्यान रखना कि अगर ट्रिब्यूनल या appellate ट्रिब्यूनल जो है उसके अंदर कोई भी प्रकार की वैकेंसी हो जाती है या उसके बनाने में अंदर कोई भी प्रकार का डिफेक्ट होता है, तो उसके कारण ट्रिब्यूनल या appellate ट्रिब्यूनल में चलने वाली कार्यवाही के ऊपर कोई असर होगा नहीं, बिकॉज ट्रिब्यूनल या appellate ट्रिब्यूनल and its members always enjoys separate legal